Okay, good afternoon, everyone. Am I audible? So, this is your physics class, and in the last class, we have completed, theory wise, we have completed our work, energy, and power. हम लोगों को अब work, energy, power theorem, work, energy theorem जो हमने पढ़ी थी, उसका use करना है. And before that, I'll be showing some illustrations to make work and energy more clear to you. And then we'll move to some good questions of JEE Mains and NEET previous year questions. If you have any doubts, and this will be your revision type class for work and energy. We have defined work as a physical quantity, how we can calculate works in different situation. In the situation of constant force, how we can calculate work. In how, when we have variable force, how to calculate work by integration. When we have given the graphical analysis, how to calculate work, we have already done that things. And energy, we have discussed three types of energies: kinetic energy, potential energy, and dissipation energy. And our work energy theorem, that is the main theorem in this chapter, that will help you not only in this chapter, in rotational dynamics, in center of mass, anywhere where we have to link our energies. Work energy theorem is the most important theorem. We'll start in a second. I'll show some illustrations and we'll do some good questions today. And if you have any doubts regarding this topic, meanwhile, you can write in the chat box. क्या करे थे यार ऊपर ही बोला नहीं छोड़ दी तो वाईफाई ये तो चल तो रहा नहीं है इससे पर. Just give me 2 minutes. I'm starting the class. You can revise your notes in the meantime.
नेटवर्क तो नहीं चल रहा। Meanwhile, we'll start with questions then. So we'll fix a problem. We'll start with problems of work. A block of mass 5 kg is pulled by an external force which depends on its position x as F is equals to 4x square plus 2x plus 1 Newton. You have to find work done by this force in displacing the block to position x is equals to 2 meter. आपको एक note down this question so that we move to the next slide for the solution. This is the question given that a block is of 5 kgs placed on this surface at x is equals to 1 meters up and a force is applied to it at an angle of 60 degree. At an angle of 60 degree, a force is applied and we have to calculate work done to move this block to x is equals to 2 meters. हमें क्या करना है? वर्क कैलकुलेट करना है. अगर मेरी बॉडी क्या करती है, इतना डिस्प्लेस करती है. So this is the question. You can try. In just a minute, I'll start this question.
तो इन दिस क्वेश्चन अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड हम इस पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं एट एन एंगल थीटा 60 डिग्री पे एंड बॉडी क्या करती है, एक्स एक्सिस में ही डिस्प्लेस होती है, x इज इक्वल्स टू 1 से x इज इक्वल्स टू 2 मीटर तक। तो हमें पूछा है कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा एंड जो फोर्स गिवन है वो फोर्स कैसा गिवन है, 4x² प्लस 2x प्लस 1। ये कैसा फोर्स है, इट्स अ वेरिएबल फोर्स, इट्स अ वेरिएबल फोर्स एट एवरी पॉइंट x। इसका क्या है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है। 1.1 पुट करोगे फोर्स का एक डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, 1.2 पुट करोगे फोर्स का एक डिफरेंट मैग्नीट्यूड है। तो जैसे जैसे हम इसे क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो मेरा फोर्स क्या है, चेंज हो रहा है। तो आई कैन नॉट अप्लाई वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बिकॉज द फोर्स इज वेरिएबल हेयर। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्मॉल वर्क डन लिखते हैं फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये मेरा वर्क फोर्स क्या रहता है, कांस्टेंट। एंड वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, एफ डी एक्स फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 1 टू x इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें इसे 4x² प्लस 2x प्लस 1 dx x इज इक्वल्स टू 1 टू x इज इक्वल्स टू 2, इसे आप इंटीग्रेट करो एंड आफ्टर इंटीग्रेशन लिमिट्स पुट करके जो आंसर आएगा joules में, that will be your answer for work. Calculate. First integrate the force and then put the values of limits. You can write your answers in the chat box. मैं इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, 4 कांस्टेंट x² का x³/3 प्लस 2x²/2 प्लस x इज इक्वल्स टू 1 टू x इज इक्वल्स टू 2। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया एंड आफ्टर लिमिट्स हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो 4/3 इंटू x³, 2³ मीन्स 8, 4 प्लस 1, ये क्या प्लस 2, दिस इज योर अपर लिमिट माइनस लोअर 3 प्लस 1 प्लस 1। इस लिमिट्स पुट करने के बाद योर आंसर कमिंग इज 20/3 जूल्स। तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन इज 20/3 जूल्स। यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल फोर्स लगाया एक बॉडी ऑफ मास 5 kg पे एंड हमने उसे डिस्प्लेस किया x इज इक्वल्स टू 1 मीटर से x इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स तक। तो हमें क्या है, दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स जब एक्ट करता है तो हम कैसे वर्क डन निकालते हैं, बाय इंटीग्रेटिंग द फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एंड पुटिंग द लिमिट्स, कहाँ से कहाँ अपने बॉडी को डिस्प्लेस किया है। तो ये क्या है, हमने इसको इंटीग्रेट किया एंड पुट डाउन द लिमिट्स एंड वी गेट द फाइनल आंसर्स। Next, moving on to the next question. This was a PYQ of JEE Mains, and the next question is from NEET. A body is constrained to move in y direction. ये body क्या है, constrained है, सिर्फ y direction में ही move करेगी. A force F is equals to minus 2i cap plus 15j cap plus 6k cap is applied to it. इतना फोर्स हमने क्या किया है,
उस पे अप्लाई किया है. सो नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द work done by force and moving the body by 10 meters in y direction. y डायरेक्शन में अगर हम किसी बॉडी को मूव कराते हैं 10 मीटर्स तो कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा. यू हैव गिवन फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म. आपको कि क्या है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है इन द आई जे के कंपोनेंट्स एंड बॉडी इज कॉन्स्ट्रेन्ड टू मूव इन द y डायरेक्शन. वो सिर्फ y डायरेक्शन में मूव करना चाहती है एंड हम कितना डिस्प्लेस कराना चाहते हैं, बॉडी को 10 मीटर्स डिस्प्लेस कराना चाहते हैं. तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट द डिस्प्लेसमेंट. आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी गिवन है एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी गिवन है. एक बार यहाँ से एनालाइज करो एंड डिस्प्लेसमेंट लिखो एंड यू नो वर्क डन क्या होता है मेरा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डिस्प्लेसमेंट. दिस इज द इजी क्वेश्चन. यू कैन गिव मी आंसर्स इन जस्ट अ मिनट. I will be sharing one assignment this week for this chapter only, work, energy and power. And the assignment will be constituting this type of questions where you have to calculate the work done. आपको वर्क डन कैलकुलेट करना आना चाहिए. सो फर्स्ट मेथड हमने देखा वेरिएबल फोर्स. अब कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड उसको 10 मीटर डिस्प्लेस करता है y डायरेक्शन में. तो व्हाट कैन बी द आंसर फॉर द वर्क डन हियर? आई हैव रिटन द फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज. You have to solve this question and write your answers in the chat box. Anyone? If you face any problem in any part of the question, you can ask in the chat box. Or you can open your mics if they are accessible to you. But you have to solve this type of questions. You have to practice these questions too for the exam. थ्योरी से काम नहीं चलता है. थ्योरी हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है. थ्योरी से हमारे पास वी हैव जस्ट दिस फॉर्मूला दैट वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हमारे पास फोर्स भी है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए हिंट्स भी है. हमें डिस्प्लेसमेंट लिखना आना चाहिए एंड देन डॉट प्रोडक्ट करना आना चाहिए. देखो किसी भी वेक्टर को, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं बेसिक से, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं जिनके पास क्या रहता है, हमारा मैग्नीट्यूड भी रहता है एंड हमारे पास क्या रहती है, डायरेक्शन भी रहती है. यहाँ पे क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड. किसी भी एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए हैज टू कंपोनेंट्स, इट्स मैग्नीट्यूड. कैसे डिफाइन करते हैं उसे, ए से, एंड उसका वेक्टर इट्स क्या, हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर डिफाइन होता है कि इस डायरेक्शन में वो क्या है, मूव कर रहा है. तो इधर उसको 10 मीटर क्या करना है, वी हैव टू मेक इट मूव 10 मीटर्स. बॉडी को कितना डिस्प्लेस करना है, 10 मीटर हमें क्या करना है, डिस्प्लेस करना है. कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना है. वाई डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, हम अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं तो वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग माय एक्स कौन करता है, आई कैप करता है. यहाँ कौन करता है, जे, वाई को जे एंड जेड एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारा के. दीज आर द यूनिट वेक्टर्स जो हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं. तो मेरा ये कहाँ मूव कर रहा है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो ये क्या आ गया, 10 जे कैप. नाउ यू हैव फोर्स, नाउ यू हैव डिस्प्लेसमेंट
Can you do a dot product of these two vectors to find the work done? आप अब वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे. Any answers? Dot product कैसे करते हैं? If I have to write it, I'm raising the first question here. Because we get everything. हम लोगों ने जो क्वेश्चन है हम लोगों को लिखना था. हमारे पास फोर्स आ चुका है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ चुका है. Now we have to you do a dot product. Work done is dot product of force 2I cap plus 15J cap plus 6K cap dot 10J cap. अब डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? कंपोनेंट वाइज होता है. आई के साथ मुझे क्या प्रोवाइड करता है आंसर? आई का जे के साथ 0. तो यहाँ पे कोई आई कंपोनेंट नहीं है, 0. जे के लिए जे इंटू जे 15 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 0, देयर इज नो के कंपोनेंट. तो कितना आ गया? 150 जूल्स. दिस इज माय वर्क डन. ये क्या आ गया? ये वर्क डन है. ये किस में था हमारे पास? न्यूटन में था. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा. डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट मीटर्स. बट वर्क डन कैसी है? हमारी स्केलर क्वांटिटी है. तो दिस इज द कैलकुलेटेड वर्क डन. कि कितना हमें वर्क करना पड़ेगा बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए 10 मीटर इन द वाई डायरेक्शन. अगर किसी बॉडी पे ये फोर्स लगता है तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? इसको डिस्प्लेस कराने के लिए 10 मीटर्स 150 जूल्स हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना. This much amount of work is needed to move this body by 10 meters. हमें 10 meters move कराने के लिए इतना work done करना पड़ेगा. So this is the second method to calculate work done. Third method was ठीक है, I'm giving you the answer first. If we draw force versus displacement, if we draw force versus displacement and the force is increasing with x, हमारा क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट करते टाइम x इज इंक्रीजिंग विद दिस एरिया. ठीक है, तो हमारा वर्क डन. अब हमसे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने को बोलेगा. वी नो टोटल वर्क डन इज f डॉट dx एंड फ्रॉम कैलकुलस वी नो दिस इज द एरिया अंडर द कर्व. ये क्या है? हमारा एरिया अंडर द कर्व है. तो यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? इस स्ट्रेट लाइन के, इस कर्व के नीचे भी जितना हमारा एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा वर्क डन. तो यू सिंपली हैव टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व. So using this, we have to solve the next question. Find work done by a variable force. एक वेरिएबल फोर्स है और आपको क्या करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी, इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी displacing the body from x is equals to 0 meters to x is equals to 10 meters. 10 meters तक मुझे अगर डिस्प्लेस करने के लिए क्या करना है? हम लोगों को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? इफ दिस वेरिएबल फोर्स इज एक्टिंग, द फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट कर्व इज गिवन टू यू. ये हमारा फोर्स है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है एंड द कर्व इज गिवन समथिंग लाइक दिस. आपको क्या गिवन है? ये कर्व गिवन है. Here x is equals to 0, x is equals to 10, x is equals to 30, and here you can calculate from x is equals to 0 to x is equals to 40 meters. आप यहाँ के लिए calculate कर सकते हो. And the corresponding force given is 10 Newton. You have to calculate the work done by this force, this variable force, जो पहले 10 meters तक क्या करता है? Continuous increase करता है. And for the next 20 meters constant 10 Newton का force लगता है. And उसके बाद force क्या करता है? Force की value decrease होती रहती है until it goes to 0. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको 40 मीटर्स तक, जब मेरी बॉडी 40 मीटर डिस्प्लेस हो जाती है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन.
Work done, we know it's area under the curve. It's area under the curve. अब आप इसके अंदर का एरिया कैलकुलेट करके मुझे आंसर देंगे कि क्या होगा यहाँ पे. 300 जूल. Someone has given the answer 300 जूल. ये कैसा फिगर है हमारा? ट्रेपीजियम बन रहा है. ट्रेपीजियम में हमारा क्या होता है फॉर्मूला? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. यहाँ पे पैरेलल साइड कितनी है? देखो फर्स्ट ए अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ तो ये कितना है? 20 मीटर्स. बी इज 40 मीटर्स. ये पूरा का पूरा हम बी है, ये 40 मीटर्स. एंड हाइट कितनी है? 10. एच इज 10. तो यहाँ पे हम पुट करेंगे हाफ इंटू 60 इंटू 10. joules is the right answer. 300 जूल क्या है हमारा राइट आंसर? राइट आंसर ये क्या है? हम इतना वर्क डन कर रहे हैं बॉडी को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कराने के लिए, इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ेगा. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस. Today illustrations are not working, so we will see the illustrations in the next class to make the work and energy more clear. We'll start with the collisions. Just we'll do some last question here. This is also from NEET PYQ. A man lifts 100 stones. Man lifts 100 stones to a height of 6 meters in 2 minutes. If mass of each stone is 1 kg, what is average power of man? एवरेज पावर क्या होगी मेरे मान? तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम. तो यहाँ पे स्टोन्स को हटाने, वर्क डन पर यूनिट टाइम. तो हमें क्या बोला है? 100 स्टोन्स को हाइट 6 मीटर पे क्या कर रहा है? वो लिफ्ट कर रहा है टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर. तो देखो अब किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा आपको? ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा. तो वर्क डन टू लिफ्ट 1 स्टोन कितना हो जाएगा? वर्क डन टू लिफ्ट 1 स्टोन ऑफ मास m एंड टू अ हाइट h. ये क्या हो जाएगा? दिस इज वर्क डन टू लिफ्ट 1 स्टोन. एक स्टोन को लिफ्ट करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? हमें इतना वर्क करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमें टोटल वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन आप क्या कर रहे हो? यू आर लिफ्टिंग 100 स्टोन्स. तो हमने 100 स्टोन्स का क्या किया? टोटल वर्क डन निकाला. और एवरेज पावर क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन that is 100 into mgh per unit time. You have mass is given 1 kg. G you can approximately take as 10 and height is 6 meters and time कितना है यहाँ पे?
2 मिनट्स, 2 मिनट्स। यहाँ पे मिनट्स में पुट मत कर देना, बिकॉज हम लोग जब भी कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस आर ऑलवेज डन इन एसआई यूनिट्स, एंड टाइम की एसआई यूनिट इज नॉट मिनट्स, इट्स सेकेंड। तो क्या हो जाएगा 120। तो यहाँ से सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा, इट्स 250। तो यहाँ पे जो 50 वॉट है, 50 वॉट इज आवर आंसर। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट पावर। पावर क्या होती है? पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आप कितनी जल्दी या कितने धीरे क्या करते हो, वर्क करते हो। एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया? टोटल वर्क डन कैलकुलेट किया, एंड टोटल वर्क डन करने के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया है? पावर कैलकुलेट कर लिया। नाउ इफ this is how we calculate work, energies, and our power. So we'll see the illustrations and do questions in the step app only, that is related to work energy theorem. And for today, we'll start our next chapter, that is collisions. We'll start our next chapter, collisions. Okay? Collisions. It is a process. It is a process of momentum transfer. It is a process of momentum transfer by internal forces of a system. By internal forces of a system. ये क्या होता है? हमारे बॉडीज क्या करते हैं? कोलाइड करती हैं। आप लोगों को पता है कोलिजन मींस दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। वो कोलाइड कर रही है, वो क्या कर रही है? इंटरैक्ट कर रही है, यहाँ ऐसे। ठीक है, हमारे पास क्या है? हमारे पास, लेट अस कंसीडर वी हैव टू बॉडीज। Can you please not open your mics between the class, in the topic? If you have any doubt, you can ask. But if you don't have any doubt, please don't open the mics. ठीक है, तो हम कोलिजन देख रहे हैं। यहाँ मोमेंटम ट्रांसफर कैसे होता है? हमारे इंटरनल फोर्सेस की वजह से। जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है व्हाइल कोलिजन, वो किसकी वजह से होता है? ओनली ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द बॉडीज। अब यहाँ पे क्या है? हमारे पास मास m1 है, एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u1, and there is a mass m2 which is moving with velocity u2. ठीक है, let's say u1 is greater than u2. In this, u1 is approaching u2, mass m1 is approaching mass m2 with velocity u1, and ये u2 से मूव कर रहा है। ठीक है, अप्रोच वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इन दोनों का माइनस। अगर हम रिलेटिव की बात करते हैं, अभी के लिए क्या कर, ऐसे मूव कर रहे हैं, एंड एक मोमेंट आएगा जहां पे ये क्या कर जाएंगे? कोलाइड कर जाएंगे। तभी दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके होंगे। तो यहाँ उस मोमेंट पे क्या हो रहा होगा? हमारा कोलिजन हो रहा होगा। तो इस कोलिजन के टाइम पे यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा? अब बॉडीज क्या आई? कांटेक्ट में आई, तो इस पे क्या लग रहा होगा? नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल इंटरनल फोर्सेस नहीं है मेरे, एक्सटर्नल फोर्सेस तो नहीं है। एंड टोटल नेट फोर्स अभी भी मेरा सिस्टम पे एज अ होल मेरा क्या है? अभी भी 0 है। तो अब मेरी बॉडी क्या कर रही थी? u1 वेलोसिटी से इस साइड मूव कर रही थी, एंड इस पे क्या लगा? एक फोर्स लगा इन दिस डायरेक्शन। अब इस फोर्स की वजह से क्या आएगी? फोर्स प्रोवाइड्स मी एक्सेलरेशन,
बट हियर द एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये क्या होती है? रिटार्डेशन, मतलब उस बॉडी के रिटार्ड करेगी, वो इधर जाना चाह रही थी विद वेलोसिटी u1, उसको यहाँ पे एक्सेलरेशन मिली, वेलोसिटी क्या होगी अब मेरी? डिक्रीज होगी। तो अब मेरा u1 क्या होता रहेगा? u1 स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। u1 क्या हो गया? जस्ट आफ्टर द कोलिजन मेरे क्या हुआ? u1 डिक्रीज हुआ। अब आप बता सकते हो डिक्रीज होगा। अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन जो ये फोर्स प्रोवाइड करेगा, उसकी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? कैन यू आंसर? इंक्रीज और डिक्रीज? डिग्री। इस इंटरनल फोर्सेस की वजह से मेरी बॉडी के पास, अच्छे से देखना, यही हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर हो गया, उसके बाद हम लोगों को मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना होता है। बट डिफरेंट स्टेट्स हमें यहाँ पे क्या करनी है, नोट करनी है फॉर द क्वेश्चन एनालिसिस। देयर आर टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2 मूविंग विद u1 and u2, एंड लेट्स से u1 इज ग्रेटर देन u2। वो क्या करेंगे? ये कोलाइड कर जाएंगे एट द टाइम ऑफ कोलिजन। जस्ट एट द टाइम ऑफ कोलिजन दे विल बी इन कॉन्टैक्ट। तो इस कॉन्टैक्ट पे मेरी बॉडीज क्या करेंगी? एक नॉर्मल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। My body one was moving with u1 velocity here, and normal क्या लगा? इसके अपोजिट लगा। तो u1 starts decreasing, and यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे u2 ऐसे था and normal ऐसे था, u2 will start increasing। यहाँ से करेक्ट, ओके, इंक्रीज। यहाँ पे u2 ने क्या करना स्टार्ट किया? ये u2 बढ़ना स्टार्ट हो गया, मीन्स अब मेरी बॉडी, ये वाली बॉडी मीन्स, शिवांश कैन यू क्लोज योर माइक प्लीज? तो ये बॉडी मेरी क्या होने लग गई है? अगर नॉर्मल फोर्स मेरा ज्यादा लगा, अब क्या है, हमारा वेलोसिटी में चेंज आया है। अब वो डायरेक्शन में भी है, मैग्नीट्यूड में भी है, इट कैन बी बोथ। ठीक है, तो यहाँ से ये u1 के साथ मूव करने लग गई एंड ये बॉडी u2 के साथ मूव करने लग गई। तो हमारा क्या हुआ है? मोमेंटम चेंज हुआ है, u1 डैश के साथ एंड u2 डैश के साथ क्या करने लग गई है? मूव करने लग गई है। एंड वी नो मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम इज mass into velocities. Initially it was moving with u1, after the collision ये दोनों किसके साथ मूव करने लग गए? u1 डैश एंड u2 डैश के साथ मूव करने लग गए। तो मेरा कोलिजन कैसा है? कोलिजन एक फिनोमिना है जहां पे मेरी बॉडीज क्या करती हैं? बॉडी स्टार्ट मूविंग, प्रोसेस ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा? मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब देखो इस स्टेट में यहाँ पे ये एरो जर्नली ये डिफाइन करता है कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, इधर भी मूव कर सकता है। देखो इस स्टेट में, यहाँ पे जो ये स्टेट है हमारी, u1 से मूव कर रहा था, u2 से मूव कर रहा था, एंड u1 इज ग्रेटर देन u2। एट द टाइम ऑफ कोलिजन इन पे क्या लगा? नॉर्मल फोर्स लगा, एंड u1 स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड u2 स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ये दोनों होते हैं। तो एक ऐसा मूवमेंट आएगा जैसे ये कितना था? ये 10 था एंड ये 8 था। ये क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो एक मूवमेंट आएगा जहां पे दोनों की वेलोसिटीज क्या हो सकती हैं? इक्वल हो सकती हैं। दिस कैन बी अ सिचुएशन। तो वो सिचुएशन जहां पे मेरी बॉडी, दोनों बॉडीज क्या कर रही होंगी? दोनों बॉडीज एक कांस्टेंट वेलोसिटी u के साथ मूव कर रही होंगी। वो मेरा स्टेट क्या होगा? इट इज द स्टेट ऑफ minimum kinetic energy during collision. It is the state of minimum kinetic energy during collision. इस मूवमेंट पे मेरी बॉडी, मेरे सिस्टम के पास क्या रहेगी? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा? आर मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे देखो सेपरेशन क्या था? पहले सेपरेशन कम हो रहा था, फिर बिल्कुल क्या करे? कोलाइड करे, एंड उसके बाद सेपरेशन क्या रहा? मिनिमम। इसके बाद सेपरेशन इंक्रीज ही होगा, एंड नाउ आई कैन राइट कि ये v1 के साथ मूव कर रही है एंड v2 के साथ मूव कर रही है। काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है। बट ये एक ऐसी स्टेट आती है जहां पे हमारी वेलोसिटीज क्या हो जाती है? इक्वल। उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। तो ये स्टेट हम लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है कि कौन सी स्टेट पे हमारा क्या रहता है? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रहती है।
ठीक है। अब इस सिचुएशन में जब मेरी बॉडी कोलाइड कर रही थी, यहाँ पे कोई एक नहीं रहा था, हमारे दोनों बॉडीज पे जो एक्ट कर रहे थे, बट एज अ होल द सिस्टम, एक नॉर्मल इस साइड लग रहा था, एक नॉर्मल इस साइड लग रहा था, एंड ये दोनों क्या होते हैं, दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज बट their magnitudes आर सेम एंड एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो नेट फोर्स तो अभी भी क्या रहा मेरा, जीरो रहा, इंटरनल भी, ऑन द सिस्टम बात कर रहे हैं, एंड एफ एक्सटर्नल भी क्या है मेरा, जीरो है। अब मैं एफ एक्सटर्नल के लिए क्या लिख सकती, लिख सकती हूँ इक्वल्स टू जीरो, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम क्या है मेरा, कांस्टेंट। हमें पता है किसी भी चीज का अगर कोई चीज कांस्टेंट है, यहाँ पे मैंने दे दिया 5, ठीक है, तो मैं इसका अगर क्या करती हूँ, डेरिवेटिव लेती हूँ, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है मेरा, जीरो। तो यहां से हमने क्या बोला कि मेरा मोमेंटम क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अब मेरा मतलब इनिशियल मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली जो मेरी बॉडीज के पास मोमेंटम था, वो फाइनल मोमेंटम भी क्या रहेगा, वही रहेगा। तो इनिशियली मेरे पूरे सिस्टम के पास दो थी, was moving and n2 was moving with u2। अब फाइनली v1 एंड v2 से मूव करती हैं। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन जहां पे क्या कर रहे हैं, मोमेंटम कंजर्व कर। आफ्टर द इम्पैक्ट, जब मेरी बॉडी इम्पैक्ट में आती है, यहाँ इम्पैक्ट लगा, नॉर्मल फोर्सेस एक्ट किए, उसके बाद मेरी बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो गई है, मोमेंटम चेंज हो चुका है, बट फाइनल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अगर वो पहले 100 यूनिट्स था, वो बाद में भी 100 यूनिट्स रह सकता है, पर मोमेंटम क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया है। पहले इसका ज्यादा था, वो क्या हो चुका है, थोड़ा ट्रांसफर हुआ है। ओनली ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम इज टेकिंग प्लेस इफ देयर नो एक्सटर्नल। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहता है तो मेरा मोमेंटम कंजर्व रहता है, मेरा इनिशियल और फाइनल स्टेट में मोमेंटम सेम रहेगा, जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम विल टेक्स प्लेस फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। दिस इज आवर collision. You can note this down, and this is the इक्वेशन दैट वी यूज टू फाइंड वेलोसिटीज v1 एंड v2। हम ये दो वेलोसिटी इक्वेशन का यूज करते हैं टू फाइंड v1 एंड v2। हमें v1 चाहिए एंड v2 चाहिए कि अगर मेरी बॉडीज कोलाइड करी तो आफ्टर कोलिजन उनके पास क्या वेलोसिटीज रहेंगी। अब हमें क्या करना है, ये वेलोसिटीज क्या रहेंगे हमें वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे दो क्या है वेरिएबल्स, वेलोसिटी v1 एंड v2। तो हमें दो इक्वेशन चाहिए, तब बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कोलिजन्स वी विल गेट टू डिफरेंट इक्वेशंस। अब हम टाइप्स ऑफ कोलिजन पे बात करते हैं, वहां से क्या लिखेंगे, हम अपनी इक्वेशंस लिखेंगे। यू कैन नोट दिस डाउन, देन आई विल मूव टू टाइप्स ऑफ कोलिजन।
Class 11 for the inconvenience. We'll continue from the collisions only. We were doing collisions. हम लोगों ने collisions कर लिया था. And collisions का हमने क्या किया था? First momentarily जो हम लोग equation use कर वो हम लोगों ने क्या कर ली थी? Use कर ली थी. Second now we have to use types of collisions. हमें क्या करना है? Types of collision करने हैं. तो based on the type of materials कि materials कैसे हैं जो हमने सब हम क्या कर रहे हैं जो सर्फेसेस ले रहे हैं उनके मटेरियल पे क्या करता है ये डिपेंड करता है कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ये 3 क्लासिफाई कर सकते हैं कैटेगरी इज हम राइटिंग में पहले जर्नल क्लासिफिकेशन कर देती हूँ वी हैव इलास्टिक कोलिजन हमारे पास क्या रहते हैं इलास्टिक कोलिजन्स रहते हैं सेकेंड वी हैव पार्शियल elastic collisions, partial elastic collisions, and third, we have inelastic collisions. We have inelastic collisions. ये 3 collisions हैं और ये किसके ऊपर based हैं? Based on the type of materials कि जो दो bodies collide कर रही हैं उनका क्या material है ये उन पे depend करता है तो यहाँ पे हो क्या रहा होगा अगर हम इन्हें classify कर रहे हैं if there are two bodies which are moving with u1 and velocity u2 after collision हमने बोला ये collide करे इनके ऊपर normal forces लगे तो एक ऐसी state आती है जो ये क्या करती हैं दोनों u से move करने लग जाते हैं the minimum kinetic energy state minimum kinetic energy state and after that acceleration अभी भी act कर रहा है ये तो एक just state है कोलाइड किए एक ऐसी स्टेट आएगी उस बीच वाली स्टेट को ये प्रॉपर फाइनल और इनिशियल ये है हमारे पर क्या है ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी स्टेट भी आती है एंड उसके बाद ये क्या करने लग जाएंगे एक्सेलरेशंस की वजह से ये v1 v2 से मूव करने लग जाएंगे ये हमारा क्या है स्टेट अगर ये बॉडीज कोलाइड करती हैं और आफ्टर कोलिजन मेरी काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या रहती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरे फाइनल काइनेटिक एनर्जी की क्या रहती है इक्वल रहती है उन कोलिजन्स को हम क्या बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं वहां पे मेरी बॉडीज ने क्या किया ठीक है यहाँ पे अभी हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं अभी क्या है ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्व काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है मेरी कंजर्व रहती है ये पोटेंशियल एनर्जी डिसिपेशन एनर्जी में चेंज नहीं होगी नेक्स्ट वी हैव पार्शियल इलास्टिक पार्शियली लॉस्ट हो जाता है कुछ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई या डिसिपेट हो गई तो काइनेटिक एनर्जी मेरी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो लेस होगी मेरे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ठीक है कितना फ्रैक्शन भी क्या हो सकता है कम हो सकता है पार्शियल है यहाँ पे ये क्या होगी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ कोर्स वो भी क्या होगी इनइलास्टिक बहुत कम होगी ठीक है ये क्या होगी काइनेटिक एनर्जी मेरी यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा बट काइनेटिक एनर्जी एनर्जी का लॉस क्या होगा सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा इस फाइनल स्टेट पे मेरी क्या रहेगी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी तो आपको पता है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी स्टेट कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे जब वो दोनों कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं तो इन इलास्टिक कोलिजन्स में आफ्टर कोलिजन्स बॉडी मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी u we'll give you methods to find that common velocity बट तीनों में मेरी क्या कंडीशन लग जाती है वी हैव अ कंडीशन अबाउट काइनेटिक एनर्जीज हमारे पास क्या लग जाती है काइनेटिक एनर्जी की कंडीशंस लग जाती हैं अगर मैंने बोला आपकी क्या है बॉडीज आर डूइंग इलास्टिक कोलिजन्स मींस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल तो आप इनिशियली लिख सकते हो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिख सकते हैं नाउ यू हैव टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स आपके पास एक मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन थी एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन आ गई इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन्स एंड आपको v1 v2 वहां से क्या कर सकते हो यू कैन इजीली फाइंड योर v1 एंड v2 यू हैव टू इक्वेशंस कितना लॉस हुआ अगर पार्शियली कोलाइड कर रहे हैं बट पार्शियली इलास्टिक है पार्शियली इलास्टिक है दैट मींस कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है जैसे मैंने बोला 25% एनर्जी इज लॉस्ट
तो वो 25% एनर्जी का हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे एंड यू गेट योर थर्ड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। एंड ऐसे ही हम इन इलास्टिक, हम तीनों को अभी प्रॉपर कवर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारी, बेस्ड ऑन द सर्फेसेस ऑफ द मटेरियल्स वी क्लासिफाई दीज एज इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। देखो, अब मटेरियल के बेस पे कैसे, अगर हमारे मटेरियल्स, अगर हम इलास्टिक की बात करते हैं, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में हमने कौन से मटेरियल की बात करते हैं, हम सीधा मटेरियल की बात कर लेते हैं। इलास्टिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, अगर कोलिजन हो रहा है तो हम वहां कौन से मटेरियल होंगे, इलास्टिक मटेरियल्स होंगे। इलास्टिक मटेरियल कौन से होते हैं, विच डिफॉर्म्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के एक्शन पे क्या डिफॉर्म हो जाते हैं, बट रीगेन्स original shape, they regains original shape on removal of force। वो क्या करते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन क्या करते हैं, रीगेन करते हैं यहाँ पे फोर्स के रिमूवल के बाद। दैट मीन्स अगर आपके पास क्या है, एक कोई बॉडी है, इस पे क्या लगा, फोर्स एफ लगा, एंड फोर्स एफ लगने के बाद मेरी बॉडी क्या हो गई, डिफॉर्म हो गई। इसने क्या किया अपना, someone has raised hand, is there any problem? ठीक है, अभी इस पे क्या लगा, हमारी बॉडी है, हमने फोर्स लगाया एंड ये क्या हो गई, डीफॉर्म हो गई। ये क्या हो गई है, डीफॉर्म हो गई है बाय इसने क्या किया, ये एक्स अपनी पोजीशन से क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। तो इसके बाद अब देखो कौन सी एनर्जी आ गई, ये फोर्स ने इस पे वर्क डन किया, ये वर्क डन किस में स्टोर हो गया होगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बीइंग स्टोर्ड हियर, यहाँ पे क्या हो चुकी है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। बट ये मटीरियल इलास्टिक मटेरियल है, दैट मीन्स आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फोर्स, आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फोर्स, इसके पास क्या होगी, एक रीस्टोरिंग प्रॉपर्टी होगी, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा और ये क्या हो जाएगी, अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी थी बॉडी में, उसका उसने यूज किया, क्या आ गई अपनी पोजीशन पे वापस आ चुकी है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई थी आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फोर्स, ये क्या हो चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज्ड। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है। तो काइनेटिक एनर्जी, बॉडी के पास जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में गई, बीच में डिफॉर्म किया उसे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, बट आफ्टर द रिमूवल ड्यू टू इट्स इलास्टिक नेचर, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई है, वापस से रिलीज कर देता है। दैट मीन्स एनर्जी किसमें फिर से काइनेटिक हो चुकी है। ही क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मेरी फाइनल पोजीशंस पे भी रहती है। तो ये क्या है, दिस इज द, ये इलास्टिक कोलिजन में इलास्टिक मटेरियल्स यूज करते हैं, मटेरियल्स की प्रॉपर्टी लिख दी, एंड वी हैव वन इक्वेशन दैट वी कैन यूज इन द इलास्टिक कोलिजन। हम इलास्टिक कोलिजन में अपनी ये कंडीशन यूज कर सकते हैं। नोटेड, note this down, this is the conditions that you are going to use। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा इलास्टिक कोलिजन हुआ, तो यू मस्ट नो कि इलास्टिक कोलिजन से मेरा क्या मतलब है। इलास्टिक कोलिजन मींस दैट बॉडीज क्या कर रही हैं, इलास्टिकली कोलाइड कर रही थी एंड फिर क्या करेगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर देंगी।
Next we have, this is elastic collision. Next we have partial elastic collisions. Partial elastic collisions. अगर partially elastic collisions होते हैं, that means बॉडी पूरी इलास्टिक नहीं है, बॉडी अपनी पूरी पोजीशन रीगेन नहीं करेगी, वहां पे क्या होगा, कुछ डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन मेरी बॉडी में क्या हो गया होगा, हो स्टोर हो गया होगा। तो वर्क डन क्या है, वर्क डन इन डिफॉर्मेशन, जो आपने क्या किया था, उसे डिफॉर्म किया था। फर्स्ट इलास्टिक कोलिजन के केस में क्या हुआ था, जो आपने वर्क किया वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो। बट अब इस केस में क्या होगा, जो वर्क आपने किया है वो क्या होगा, पार्शियली, उसमें से कुछ अमाउंट पार्शियली इट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पार्शियली एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। एंड रिमेनिंग एनर्जी, थोड़ी एनर्जी यहाँ क्या, एंड रिमेनिंग एनर्जी इज डिसिपेटेड। डिसिपेटेड एनर्जीज कौन सी होती हैं, दैट वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिटेन्ड बैक। ये हीट एंड साउंड की फॉर्म में क्या हो गई है, हमारे इस यूनिवर्स में रिलीज हो चुकी है, हम उसको सिस्टम में वापस नहीं लेके आ सकते हैं। तो पार्शियली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड जैसे ही हमने इस पे फोर्स लगाया, बॉडी डीफॉर्म हुई। ठीक है, ये बॉडी क्या हुई, डीफॉर्म हुई। आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फोर्स, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी मेरी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगी, स्टोर्ड होगी, वो तो क्या हो जाएगी, रिलीज कर देंगे। आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फोर्स पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो जाएगी, पर कुछ डिफॉर्मेशन बच जाएगा। कुछ डिफॉर्मेशन क्यों बचा, बिकॉज आधी एनर्जी तो कहाँ डिसिपेट हो गई थी मेरी, पोटेंशियल ये डिसिपेटेड फॉर्म में रिलीज हो गई थी, तो मेरी कुछ ही एनर्जी रिलीज हुई, मतलब देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ क्या हुआ, हमारा लॉस ऑफ एनर्जी। इलास्टिक, मेरे मेरे पार्शियली इलास्टिक मटेरियल्स हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। दैट मींस इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब 25% लॉस हो रहा है, 30% लॉस हो रहा है, दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल विच वी आर यूजिंग। हम कौन सा मटेरियल यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल। आप सारी पोटेंशियल एनर्जीज एंड काइनेटिक एनर्जीज को रिलेट कर रहे हो ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन्स। कोलिजन्स में मोमेंटम ट्रांसफर होता है। The first equation, momentum conservation, that is applied in all the type of collisions. चाहे मेरा इलास्टिक collision हो, चाहे inelastic collision हो, हमारा क्या रहता है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। एनर्जी कंजर्वेशन वी हैव टू सी कि कौन से टाइप का हम कोलिजन लेने वाले हैं। लास्ट कोलिजन वी हैव इज इनइलास्टिक कोलिजन। दैट मींस मेरे बॉडी कैसी है, इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक मटेरियल है। दैट मींस उसके ऊपर कोई भी वो रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगाती अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने के लिए। दैट मींस अगर मेरे बॉडी पे क्या लगता है, फोर्स एफ लगता है, एंड बॉडी एक बार डिफॉर्म हो गई, ठीक है, बॉडी ने क्या किया, ये फोर्स एफ लगने के बाद बॉडी डिफॉर्म हो गई, तो आफ्टर रिमूवल मेरी बॉडी क्या है, आफ्टर रिमूवल ऑफ द फोर्स, अभी फोर्स यहाँ लग रहा है, जैसे ही फोर्स हटाया मेरी बॉडी क्या हो जाएगी, डिफॉर्म स्टेट में ही रहेगी। बॉडी क्या रहेगी मेरी, डिफॉर्म स्टेट में ही रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी को अपने पास ही रख, ठीक है, डिफॉर्मेशन स्टेट में ही रहेगी। तो यहाँ पे वर्क डन एंड डिफॉर्मेशन, जितना आप वर्क डन लगा रहे हो बाय अप्लाइंग द फोर्स, ये सारी की सारी एनर्जी कहाँ हो जाती है, कंप्लीटली डिसिपेटेड हो जाती है। कंप्लीटली क्या हो गई, डिसिपेटेड हो गई, कोई पोटेंशियल एनर्जी वापस ही नहीं आई, इसने अपनी रिस्टोर करा ही नहीं। नो रिस्टोरिंग फोर्सेस, नो पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड, नो पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड, बिकॉज कोई मेरा रिस्टोरिंग फोर्स लगा ही नहीं। बात हो रही है ऑन रिमूवल of force, body remains in deformed state only। बॉडी क्या रहती है, डिफॉर्म स्टेट में ही रहती है।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे नो रिस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट, तो नो रिस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट इन inelastic materials. In inelastic materials, there is restoring. तो ये आपने तीनों टाइप के फोर्सेस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज हमने क्या कर लिए हैं, स्टडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर से फ्लो चार्ट से ही देखते हैं तीनों कंडीशंस। अगर हमारे पास क्या है, बॉडी m1 इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, बॉडी m2 इज मूविंग u1 एंड u2 के साथ मूव करती है ऑन कोलाइडिंग। जब ये कोलाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो रहे होंगे, डीफॉर्म हो रहे होंगे। कोलाइड करते टाइम जस्ट एट द कोलिजन, जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आते हैं, इम्पैक्ट जब शो हो रहा होता है, तो ये क्या हुए, मैक्सिमम डिफॉर्म हुए। तो इस पोजीशन पे मेरी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है एंड मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम है। अगर मेरी बॉडी क्या रहती है, इनइलास्टिक बॉडी रहती है, तो ये यहां से काइनेटिक एनर्जी मिनिमम ही चाहिए होता है, तो यहां से मेरी इन इलास्टिक बॉडीज क्या हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, और वो ऐसे ही कॉमन वेलोसिटी u से क्या करती हैं, मूव करती हैं। सो दिस इज द स्टेट ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। यहाँ पे मेरी बॉडी क्या कर रही है, मास m1 m2 क्या हुए, डीफॉर्म हुए, पर इनके पास कुछ भी रीस्टोरिंग क्या है, कोई भी रीस्टोरिंग फोर्सेस लग ही नहीं रहे हैं कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, अलग हो जाएं। बट अब क्या हो गए, ये दोनों मर्ज हो गए, क्या कर रहे हैं, कॉमन वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहे हैं। तो इन टाइप ऑफ कोलिजन्स को हम क्या बोलते हैं, इन स्टेट है। अगर मेरी बॉडी क्या रहती है, इलास्टिक है या पार्शियली इलास्टिक, इलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक हैं, पार्शियली इलास्टिक हैं, तो इनके पास क्या होगा, कुछ रीस्टोरिंग फोर्स होगा। उस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, उन रीस्टोरिंग फोर्सेस की वजह से मेरी बॉडी क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, एंड दे स्टार्ट मूविंग विद velocity v1 and v2, बिकॉज क्या हो चुका है, मोमेंटम ट्रांसफर हुआ बिकॉज ऑफ द कोलिजन। अब ये v1 वेलोसिटी v2 वेलोसिटी के साथ क्या करने वाले हैं, मूव करने वाले हैं। इलास्टिक होंगे तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी मेरी। यहाँ क्या होगा, इन पार्शियल के केस में देयर विल बी सम लॉस, कुछ लॉस होगा, पर लॉस जो यहाँ जितना लॉस हो रहा है, यहाँ मेरा काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या रहता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम रहता है। इन इलास्टिक कोलिजन के बाद मेरी बॉडी सब कहाँ रहती है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी स्टेट में रहती है। सो दिस इज द फ्लो चार्ट। अगर बॉडीज कोलाइड कर जाती हैं और वो क्या है, मेरी इन इलास्टिक बॉडीज हैं, तो वो एक बार इम्पैक्ट में आई, अब ये वापस जाएंगी ही नहीं, बिकॉज इन इलास्टिक मटेरियल्स क्या है, जिनके पास कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, वो अब ऐसी वेलोसिटी यू के साथ क्या कर जाएंगे, एक कॉमन यू के साथ मूव कर जाएंगे। बट अगर मेरी क्या है, इलास्टिक एंड पार्शियली इलास्टिक है, रिस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट एंड ये क्या करेंगे, डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ मूव करने लग जाएंगे। तो नाउ वी हैव टू फाइंड डिफरेंट वेलोसिटीज। हम कॉमन वेलोसिटी तो इजीली फाइंड कर सकते
देखो यहाँ पे नेट है, तो इनिशियली मेरी बॉडी क्या थी, m1u1 प्लस m2u2 इतने मोमेंटम के साथ जा रही थी। बाद में मेरी बॉडी कॉमन वेलोसिटी u के साथ मूव कर रही है, तो वो कॉमन वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हो, m1u1 प्लस m2u2 ओवर m1 प्लस m2। ये क्या होता है, मेरी बॉडी दो बॉडीज कोलाइड करती हैं और इनइलास्टिक कोलिजन होता है। कैसा कोलिजन होता है, इनइलास्टिक। तो ये क्या है, मेरी कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द कॉमन वेलोसिटीज। तीनों कोलिजन्स को हम कैसे क्वेश्चन वाइज हम लोग इसको मैथमेटिकली हम इसको किस एक प्रॉपर्टी से और डिफाइन कर देते हैं, तो हमारे तीनों प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, कंप्लीट। तीनों टाइप के क्या हो जाएंगे, कोलिजन्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी सीइंग एवरी कोलिजन एंड इन डिटेल कि बाद में हमारी क्या क्या वेलोसिटी रहती है। तो हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम डिफाइन कर रहे हैं व्हेन टू बॉडीज कोलाइड, then there is a then there is a constant parameter there is a constant parameter which accounts for the elasticity of मटेरियल ऑफ बॉडीज। जो हम बॉडीज की इलास्टिसिटी को क्या कर सकते हैं, पैरामीटर वो डिफाइन कर सकता है, ये कितना क्या है, इलास्टिक है, कितना इनइलास्टिक है, इससे हम क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। सो ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी। कैसे डिफाइन किया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along the line of impact, कि कितनी सेपरेशन वेलोसिटी है मेरी, एंड ओवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच along the line of impact, उस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अराउंड मेरी कितनी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन है। दैट मीन्स अगर मैंने लिया मेरी दो बॉडीज आ रही थी विद u1 एंड u2 वेलोसिटी कोलाइड करे, ठीक है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, जिस लाइन के अलोंग, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलोंग मैंने क्या कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज माय लाइन ऑफ कांटेक्ट। इस क्या करने लग जाते हैं, वेलोसिटी v1 एंड v2 के साथ क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। देखो v1 v2 के साथ मूव करेंगे और एनर्जी लॉस नहीं होगा तो मेरी क्या हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है।
अगर ये जुड़ ही जाते हैं, विद कॉमन वेलोसिटी मूव करते हैं, तो मेरा ये 0 हो जाता है। तो इसलिए हमने एक पैरामीटर डिफाइन किया जो आपको क्या बताएगा कि कितने मटेरियल्स मेरे इलास्टिक हैं, कितने इनइलास्टिक हैं, और कितने क्या हैं मेरे परफेक्टली इनइलास्टिक हैं। इससे आप क्या कर सकते हो, डिफाइन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो E क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन कितनी हुई, ये क्या है, ये v2 से जा रहा है माइनस v1। ये क्या है, कितना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है बॉडीज का, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u1 minus u2. So this is your formula. You can relate the this parameter to the elasticity of the body, कि बॉडी कितनी इलास्टिक है। अगर E equals to 1 है, that means ये क्या है, मेरी फुल इलास्टिक बॉडी है। क्या है ये, फुल इलास्टिक बॉडी। E equals to 0 है, तो ये क्या है, मेरी इनइलास्टिक है मेरी बॉडी, सेपरेट ही नहीं हुई। देखो E equals to 0 मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, 0, वो दोनों बॉडी सेपरेट ही नहीं हुई। एंड E क्या है, अगर वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो क्या है मेरी, ये पार्शियली इलास्टिक है, कि पार्शियली इलास्टिक है। ये हमें क्या बताएंगी, E हमें क्या डिफाइन करेगा कि मेरे मटेरियल्स कैसे हैं। तो दीज आर सम वैल्यूज जो आप क्या कर सकते हो, देख के आप बता सकते हो मेरी बॉडीज क्या हैं, पार्शियली इलास्टिक है या इनइलास्टिक। So today we have completed the theory of collisions. In the next class we will be dealing with head-on collisions. जब ये दोनों collisions collide कर रहे हैं, तो ये final velocity v1 v2 से move करते हैं, तो वो velocities हमें क्या करनी है, find करनी है। ठीक है, we'll do this in the next class, and हम head-on collision and oblique collision. In the next class, we will be completing this and we'll be starting our next topic, that is center of mass. And if the net works, then we'll be doing some questions on work energy part as well as on this topic. For the weekend, I will be providing you one assignment. You can solve that assignment for work energy and part. If you have any doubts, you can write in the chat box. Class 11th, any doubts? In the collisions also. ये आपको इलास्टिक collisions, पहले तो collision समझ आया। Collision is a phenomena where transfer of momentum takes place. जहाँ पे momentum क्या होता है, हमारा transfer होता है। उसके बाद हमने क्या किया, collision को समझा कि bodies collide करती हैं, वहां पे कुछ impact आता है मेरा bodies के अंदर, उस impact की वजह से मेरी velocities change हो जाती है। अब वेलोसिटीज कैसे चेंज होंगी, वो हमारे टाइप्स ऑफ कोलिजन पे बेस्ड होगा। क्या कितने टाइप के कोलिजन हमने किए, 3 टाइप के हो सकते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड पार्शियली इलास्टिक। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग न्यूमेरिकल्स ऑन दिस बेस्ड ऑन दिस थ्योरी। ठीक है, कम रिवाइज्ड। एनी डाउट्स? If you have any doubts, I am waiting for your doubts and I'll clarify. You can write in the chat box. No. Okay. If no doubts, then we'll be ending this session and we'll meet next week to take this topic forward. Okay, everyone? If no doubts, then I'll be ending the class. You can leave. Okay. Bye, everyone. Take care. Okay. If no doubts, bye. And I'll end the class from my side.